بتاتے چلیں پولیس کا گندگی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن، 3 روز میں 200 سے زائد ملزمان گرفتار، مقدمات بھی درج۔ سندھ سالڈ ویسٹ کا صفائی آپریشن بھی جاری، لانٹھی یار میموریل گراؤنڈ میں کلیکشن پوائنٹ کی صورتحال بہتر، شہر سے 63,975 ٹن نالائشیں لینڈ فل سائٹس منتقل، ارکے گلاب کا سپرے اور چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ واٹر کارپوریشن کا جامعہ کراچی سے گزرنے والے کینڈویٹ کی صفائی کا کام جاری، ایم ٹی واٹر کارپوریشن کے مطابق کینڈویٹ سے رکاوٹوں کو نکال کر سپلائی مکمل بحال کی جائے گی۔ مزید تفصیلات احسن عباسی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ گلشن اقبال کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، جامعہ کراچی سے گزرنے والے کنڈیوٹ کی صفائی کا آغاز، پانی کی سپلائی مزید تیز ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں کنڈیوٹ کے اوپر سے بھاری مشینری کی مدد سے جھاڑ کی کٹائی کی جائے گی، پھر چیمبر سے اتر کر کنڈیوٹ کا معائنہ کیا جائے گا۔ ہمارا ایک چیمبر یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹل انکروچ ہو گیا ہے، ان درختوں کی وجہ سے پورا گر گیا ہے، اس کو ہم یہاں کلیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں آبسٹرکشن کا سامنا ہے، تو ہمیں شک یہ ہے کہ چونکہ کافی عرصے سے اس جگہ پہ یونیورسٹی والوں کی طرف سے بھی کام نہیں ہوا اور چونکہ ہمارا بھی آنا یہاں پہ ہم ایکسیس نہیں ہے، اس لیے کہ اس چیمبر کی صفائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹو انجینئر رضوان احسن نے بتایا کہ ڈملوٹی سے لائنز ایریا تک واٹر کارپوریشن کا کنڈیوٹ گزر رہا ہے۔ کنڈیوٹ میں 7 سے 8 MGD پانی سپلائی کیا جاتا ہے، جس میں پانی کو رکاوٹ کا سامنا ہے۔ اس جگہ جس پورشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ تقریباً 8 سے 10 MGD پانی ہمارا چلتا ہے، جو اس وقت 3 سے 4 MGD پانی کم ہے، اور کبھی یہ پانی رات کے وقت میں زیادہ ہو جاتا ہے، دن میں جب کنزمپشن کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں تقریباً 5 MGD کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا تھا کہ کنڈیوٹ سے رکاوٹوں کو نکال کر سپلائی مکمل بحال کی جائے گی۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی اسپتال میں کیسز رپورٹ، حادثات سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد لیاقت آباد اسپتال میں لائے گئے۔ بہترین طبی سہولیات نہ ملنے پر مریض بھی پھٹ پڑے، بولے کوئی سہولت نہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر بھی دوسرے اسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں جانیے۔ عید پر بھی اسپتال مریضوں سے بھرے رہے، مختلف اسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 4000 مریض لائے گئے۔ ڈائریا، گیسٹرو، ٹریفک حادثات کے کیس رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں مریضوں کو بہتر طبی سہولتیں میسر نہ ہو سکی۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ معمولی بیماری میں بھی دوسرے اسپتال ریفر کیا جا رہا ہے۔ بھائی تیسری دفعہ آ چکا ہوں، یہ اسپتال کی پرچی ہے، انہوں نے ابھی بھی بولا عباسی اسپتال لگے ہیں، فجر سے درد ہو رہا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اب کے لیے عباسی لے، تو آپ کا بیٹھنے کا یہاں فائدہ کیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں عباسی جاؤ، میں نے بولا یہیں سے صحیح سے چیک کر لو۔ چیک بھی نہیں کیا؟ نہیں چیک بھی نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے ابھی۔ دوسری جانب اسپتال کی ایمرجنسی میں موجود سینئر اسٹاف شہر بانو نے کہا کہ اسپتال کی ایمرجنسی میں تمام ادویات اور اسٹاف موجود ہے اور آنے والے مریضوں کو بہتر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی میڈیسن موجود ہے، جو کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ RTI کی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ان دنوں میں بہت کیس آتے ہیں، گیسٹرو کے بہت آتے ہیں، تو الحمدللہ باہر سے پیشنٹ کو کچھ لینا نہیں پڑتا۔ تمام چیزیں جو ہیں ہماری ایڈمنسٹریشن نے جو ہے پہلے سے یہاں پہ جو ہے ارینج کر کے رکھی ہوتی ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ اسپتال کی ایمرجنسی کی حالت انتہائی خراب ہے، بیڈ شیٹ پھٹی پرانی ہے، بستروں کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ اسپتال کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایمرجنسی کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ ابراہیم رند، سٹی 21۔ شہر کو صاف رکھنے کے لیے سخت اقدامات، عید قربان پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں، 3 روز کے دوران 200 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس کا عید قربان پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن جاری رہا اور 3 روز کے دوران 200 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ کیا گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ علائشوں کی چیر پھاڑ کر کے گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ بتاتے چلیں کہ پولیس کا عید قربان پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن جاری رہا اور 3 روز کے دوران 200 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ کراچی میں جہاں شہری اپنی فیملیز کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں، وہیں پولیس اہلکار اپنے اہل خانہ سے دور سڑکوں پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات معراج اختر کی رپورٹ میں جانیے۔
पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी। एहलियान कराची की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार पुरअज़्म। ईद के तीसरे रोज भी पुलिस एहलकार फराइज़ मनसबी की अंजाम दही में मसरूफ। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस एहलकार हमा वक्त शहर की सड़कों पर मौजूद हैं। आज ईद के तीसरे रोज भी एहलकार अपने फराइज़ की अंजाम दही में लगे हुए हैं। जबकि शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा ईद मना रहे हैं तो ये एहलकार अपने अहल खाना से दूर अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि अब आदत हो गई है इस तरह ईद मनाने की। हमारा गवर्नमेंट ने हमारे को इसी वजह से तो भर्ती किया, हम जानो मालों की आवाम की खिदमत करना, और उसके बाद में हर बंदा जो है ना ईद पे जाते हैं, हम यहाँ पे ही ईद करते हैं, आवाम की खिदमत करना और उनकी जानो मालों की हिफाजत करना। हमारी ईद और दीगर त्यौहार सिक्योरिटी ड्यूटी पर ही गुजरते हैं। दिल तो हमारा भी चाहता है कि बच्चों के साथ ईद मनाएं, लेकिन हमारे लिए फ़र्ज की अदायगी पहले है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। फीलिंग सर ये होती है कि हमारा भी दिल करता है, लेकिन पहले जो आवाम है उसकी खुशियों की वजह से हमारी खुशियाँ दुबाल है। हमारे जो बच्चे हैं उनको पता है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं और उन्होंने इन दिनों में टफ ड्यूटी करनी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिन एहलकार और अफसरान ने ईद के दिनों में ड्यूटियां अंजाम दी हैं उनको ईद के बाद मुतबादिल रुख्सत दी जाएगी ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। कैमरामैन सज्जाद जैदी के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। ईद की खुशियों में सिफारतकार भी किसी से पीछे नहीं। रूस और श्रीलंका के सिफारतकार भी ईद की खुशियों में पेश हैं। सिफारतकारों ने ईद की मुबारकबाद दी। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। गैर मुल्की सफारतकार भी ईद की खुशियों में पेश। सिटी न्यूज नेटवर्क बना रूस और श्रीलंका के कौंसल जनरल्स का मेहमान। रूसी कौंसल जनरल आंद्रे विक्टोरोविच फेडरोव ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल ने रूसी सफारतखाने का दौरा करवाया और बोले, ईद का खास दिन सबके लिए अमन, खुशी और अहम आहंगी लाए। कौंसल जनरल श्रीलंका जगत अभिवर्णा ने भी ईद उल अजहा पर मुबारकबाद दी। बोले, सयाहत के एतबार से श्रीलंका बहुत खूबसूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तानी भी वहाँ के हसीन नज़ारों को देखने जाते हैं। कराची में तैनात रूस और श्रीलंका के सुफरा ने ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान के जज्बे की तारीफ की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। ईद उल अजहा के मौके पर अंगीठी, कोयले और सीख की मांग में इजाफा। चटपटे खाने और बारबेक्यू की तैयारी के लिए शहरी अंगीठियों और कोयलों का बंदोबस्त करने लगे। स्टॉल मालिकान कहते हैं कि इस साल पिछले साल की निस्बत सीख और अंगीठियों की फरोख्त में अच्छा इजाफा हुआ है। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई, अब चटपटे खानों की बारी। कुर्बानी के बाद बारबेक्यू का सीन ऑन। अंगीठी, कोयले और सीख की मांग बढ़ गई। स्टॉल मालकान मांग बढ़ने पर खुश। कहते हैं लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। एक अंगीठी 800 रुपए में दस्तयाब है। अगर महंगाई जितनी भी हो मगर जानवर उससे ज्यादा कटता है। हर साल ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं मंडी मंडी मंडी, मगर फिर भी मजीद जानवर ज्यादा आते हैं और इस साल भी माशाल्लाह ज्यादा आए और काम भी हमारा अच्छा चला, अल्लाह का शुक्र है। और कोयला भी हमारा अभी भी बिक रहा है और बिकता रहेगा 15-20 दिन तक। शहरी कहते हैं कि फैमिली के साथ बारबेक्यू करने का अपना ही मजा है। एक अंगीठी में 800-900 हज़ार रुपए की दे रहा हूँ। अच्छा, ये 800-900 की एक अंगीठी दे रहे हैं तो महंगी नहीं है? पिछले साल की बानिस्बत थोड़ी महंगी है क्योंकि सालाना इजाफा होता है, इस वजह से। महंगाई अपनी जगह, लेकिन ईद भी तो मनानी है। ईद के गोश्त का मजा हो, बारबेक्यू के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। कोयलों की हरारत, गोश्त की खुशबू और खानदान का साथ, यही है ईद की असल खुशी। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। सिंध सरकार ने सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन की 5 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर ली। नदीमुर रहमान मेमन ने ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर छुट्टियां हासिल की, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन की 11 जून से 15 जून तक छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात का इजाफी चार्ज डायरेक्टर जनरल इत्तलात मोइजुद्दीन पीरजादा के स्पुर्द कर दिया गया है। कमिश्नर कराची हसन नकवी से यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पोलियो ब्रांच ने मुलाकात की। पोलियो के खिलाफ जंग में मुसलसल कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर्स को सराहने के लिए तारीफ़ी तकरीबात मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश कर दी गई।
डॉक्टर फ्रेंका ने कमिश्नर कराची की क़यादत को शहर से पोलियो के ख़ात्मे के इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए ठोस इक़दामात को सराहा। कराची में पोलियो मुहिम के बुनियादी मकासद के तौर पर वबाई अमराज की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए निगरानी और वैक्सीनेशन कवरेज को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कराची भर के डिप्टी कमिश्नर्स के फ़ाल किरदार का भी एतराफ़ किया गया। CDC के वफ़द को इनके जारी हिमायत के एतराफ़ में यादगारी तहाइफ पेश किए गए। डॉक्टर रिचर्ड फ्रेंका अमरीकी सेंटर के वफ़द की क़यादत कर रहे थे। इस मौके पर सऊद याकूब खोसो, डॉक्टर शुमाइला रसूल, गुलाम मोहम्मद खान भी मौजूद थे। पाकिस्तान का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्ज़ की अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है। कहा कि महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 11% पर आ गया है। शरह सूद में कमी होने से कर्ज़ की अदायगी में कमी आई है। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत, मईशत की बेहतरी के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात नागुज़ीर करार, बैरूनी कर्ज की अदायगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि कर्ज की अदायगी हुकूमत का सबसे बड़ा खर्चा है। उन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी से कर्ज की अदायगी में कमी आई है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि एनर्जी के शोबे में गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए बैंकों से 1272 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहिदा किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बेहतरी आई। इस तरह डिस्कोर्स की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। प्रोडक्ट्स में और जिद्दत लेकर आएंगे। हम इसको ज़ीरो कूपन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ लेके जाएंगे। मैं आपका उसमें वक्त नहीं लेना चाहता, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड एज ए मॉडर्न ट्रेजरी, एज अ मॉडर्न ट्रेजरी व्हिच इज़ इन द 21st सेंचुरी। वो हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम एज वी गो इनटू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो इसलिए इस वक्त जो बैंकों के साथ मार्कअप लिया गया है ये आपके सामने आ जाएगा। आपकी उसमें बिल्कुल इत्मीनान होगा। आप फिक्र ना करें कि उसमें इट्स अ वेरी वेरी फेयर डील। उन्होंने कहा कि 2023 में मुल्क की शरह नमू मनफी थी, जिसमें गुज़िश्ता माली साल में बेहतरी आई है जो 2% रही, और इस साल में मजीद बेहतरी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आर्मी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया। ये भी कहा कि माशी महाज पर एक जंग जारी है। IMF की मीटिंग से पहले इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त के जारी करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास पर ये एजेंडे पर ही ना आए। मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज चैम्बर ने बिजनेस कॉन्फिडेंस के बढ़ने के बारे में बताया। इस तरह दूसरे इदारों ने भी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत इमेज को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। इस तरह शरह सूद 11% तक आ गया है। अशरफ खान, City 21। टाउन चेयरमैन चनेसर गोट फरहान गनी के इलाके के दौरे बहुत बेहतरीन हिकमत अमली के बायस चनेसर गोट में सफाई के उम्दा निज़ाम कायम रहा। फरहान गनी कहते हैं कि हमने मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी थी और इसमें मेरे टाउन के तमाम अमले को खराज तहसीन पेश। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि चनेसर टाउन में इस बार पहले से निस्बत बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और ये सिर्फ मैं यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर रहा, अगर आप मेरे पूरे टाउन में विज़िट भी करें तो आपको नज़र आएगा कि पूरा इलाका साफ़ है। पूरे इलाके में कहीं पर भी एलाइशन नहीं है। अब कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची होती है, कहीं अंदर गली में होता चलो एक आधा रह जाती है, तो हम विज़िट करने के बाद यहाँ पे डंपिंग पॉइंट पे आए तो यहाँ पर भी मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे अब कचरा जो एलाइशें होती हैं वो नहीं है। अब जो मट्टी होती है या जो नीचे चटाइयाँ बिछाते हैं, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं, वो भी गाड़ियाँ लगी हुई भी साफ़ हो जाएंगी। और मैं इस पूरे ऑपरेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और मेरे पूरे टाउन की टीम, जिसमें हमारे MC साहब हैं, नदीम ख्याली हैं, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर हैं कमर अहमद खान, पूरी टीम है हमारी, तौकीर अब्बास साहब हैं और सारे डायरेक्टर्स से हमारे जो हर UC में थे, उन्होंने पूरी दिन रात मेहनत की है, 3 दिन लगातार 4 दिन मिलके, और उसका ये नतीजा है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। हम तो मॉनिटर ज़रूर कर रहे होते हैं, मैं ग्राउंड पे ये लोग मौजूद रहते हैं। असल ईद के 3 दिन जो ये तकलीफ़ होती है कराची की आवाम को या पाकिस्तान की आवाम को, असल हीरोज़ यही होते हैं जो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका। एक तो शायद इसकी वजह ये कि हम कोई पहली बार ये काम नहीं कर रहे। मुझे तकरीबन पहले मैं UC चेयरमैन रह चुका हूँ, जो और हमारी टीम में तकरीबन ऐसे हैं जो UC ज़िम्मेदारान कहीं पर रहे हैं, तो हमें ये जो इश्यूज़ हैं फिंगर टिप्स पे याद हैं कि क्या इशू आता है, क्या मसला होता है। जैसे इस बार भी हमें प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे ईद के दिन सुबह गाड़ियाँ लेट आई हैं, तो हमने सीखा कि यार नेक्स्ट टाइम गाड़ियाँ जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की नीड थी, वो 9 बजे तक पहुँचनी थी, फर्स्ट डे में 7-11-12 बजे मिली वो। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है और हम सीखने की कोशिश करते हैं इससे, तो आगे आके बेहतरी आती है। तो इसकी वजह ये कि हम काम करते रहें, तो इसलिए इसमें बेहतरी आती है। और इलाके में सारी हमारी एक पूरी जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर
हमारी पुलिस पार्टी की पूरी तंजीम जो है, यूथ है, PSF है, हम सारे ऑन बोर्ड होते हैं। कभी मौका लगा तो आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह किस पे काम करें। लिस्टिंग होती है, बाकायदा नंबर्स होते हैं। हम हर एरिए में, हर वार्ड में, हर गली में उनके वहाँ के लोगों को, मकामियों को एक नंबर दे देते हैं कि आपकी जिस टाइम भी कुर्बानी हो जाए तो आप इस नंबर पे एक कॉल कर लीजिएगा, विद इन 10 मिनट्स आपकी LI के उठा ली जाएगी। तो उसमें आसानी होती है, टीम वर्क है। तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा और एज अ टाउन चेयरमैन ज़रूर हमारे आता है हमारे ऊपर कि टाउन का काम ही अच्छा हुआ, मगर मैं अकेला या MC या मेरा वाइस चेयरमैन हमारी लेबर के बगैर, हमारे डिपार्टमेंट के बगैर कोई काम कर नहीं सकते। असल हीरो वही हैं और उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं इनके साथ हर जगह खड़ा रहता हूँ।